Is it visible to everyone? Hello. ये Yes, विजुअल है sir. ना? अच्छा, ठीक। कल हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक टाइप्स ऑफ द सोलर कलेक्टर, कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी। हमने देखा था कि किस तरह के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट है। अब आज हम लोग थोड़ा देखेंगे, उसी के बारे में देखेंगे और सोलर वाटर हीटर के बारे में देखेंगे, सोलर एयर हीटर क्या होता है, सोलर क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो these are the outlines for the today introduction to heat transfer. Already you already study about the heat and mass transfer. तुम्हारे पास ऑलरेडी थर्ड ईयर में था हीट एंड मास ट्रांसफर सभी, तो उसमें हमने हीट ट्रांसफर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और स्लाइटली हम उसको रिवाइज करेंगे। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, उसका एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम, रेस्ट्रिक्शन इन यूजिंग सोलर एनर्जी एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर। यदि हम हीट ट्रांसफर की बात करें, एवरीवन नो दैट हाउ द हीट ट्रांसफर, heat only transfer due to the temperature difference. Temperature difference is the derivative force for the heat transfer, and there are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. And everyone know, all of you know that, except the two or three candidates from the electrical departments. Everyone know that what is the conduction, convection, and radiation. So, see here, heat transfer process in the solar collector. Uh, Numbers of collector we are using in the hostels, in the household, in the winter season for getting the hot water for bathing or other purposes. So this is a solar collector that's used in our household. So what is the basic concept? The basic concept is there is a metallic tube here and inclined at a altitude angle so that the direct radiation can fall on the this surface and the maximum part of irradiation absorbed by the metallic tube, and the back surface of the tube is coated by lacis. As you know that the black body is a 100% absorbable body. So the idea behind this is to cover the tube surface or the back surface with the black color so that it can absorb maximum parts of the energy, and this is the basic concept. So you can see this is the Q is the amount of heat coming from the sun. This is the Q emitted. As you know that according to the Kirchhoff's law, good emitter, good absorber is a good emitter. So obviously this body absorbs the certain maximum parts of the energy, but when the temperature of the body will increase, it will also emit the energy. So this is the part of the energy emitted by the this body. This is the convection air. As you know that the convection is the modes of heat transfer in which heat transfer takes place due to the movement of the air or due to the movement of the velocity or due to the movement of the medium. So here air is circulating around the tube, so heat transfer due to the circulation of the air. So this is the convection, heat convection, and this one is the conduction. When the heat coming inside the tube, so then that amount of heat is known as conduction. That is known as conduction. And as you know that the heat transfer takes place by the conduction in the metals only, not in insulator, only in the metals. If you want to restrict this amount of heat transfer, just provide an insulation so that the heat does not transfer from one surface to another surface. This is the basic concept. This is the conduction panel and this is the convection medium, and the tube is properly covered by an insulator so that the heat absorbed by the tube does not go away from the tube, and all the tube get fixed in a flat plate. So it is known as flat. This is also known as a flat plate collector.
three heat transfer modes in the solar collector, that is known as radiation. Q sun is the radiation falling on the surface, solar irradiation, and Q emit is the amount of heat emitted by the body. Amount of heat emitted by the body or the surface that get covered by a black paint. And this is the convection heat, convection air heat loss due to the movement of the wind, and Q convection medium heat transfer to the flow of the medium through the tube wall. As you know that in the tube, water always circulating. So in the bottom also convection takes place. And what is the conduction? The conduction takes place heat transfer inside the metal panel. As you know that the tube of the heat tube of the heat collector is made of copper or metal, so the conduction takes place in the tube, and conduction insulator heat flows to the insulator from the panel. Everyone know that diffusion, the transfer of energy from the more energetic to the less energetic particles of a substance due to the interaction between the particles with the bulk. This is conduction. Everyone knows that what is the conduction? Conduction is a mode of heat transfer in which heat transfer takes place due to movement of free electrons and lattice vibration. So, conduction is a mode in which the heat transfer only takes place due to the direct contact of the metallic surface. If there is a gap between the metallic surface, there is a certain cavity inside the material, then the transfer of heat through the conduction will reduce. So conductivity of metal will depends on the conduction heat transfer through the metal will depends on the conductivity of material. A good conductive material will transfer heat from one end to another end in very short time, whereas a bad conductor material can transfer heat from one end to another time in long time. So this is the modes of heat transfer, that is known as conduction. This is the convection. Everyone knows that the convection takes place in the liquid and gaseous medium, in which state when there is a velocity gradient inside the medium. If there is no velocity gradient inside the medium, then there is no heat transfer takes place by the convection. In that case, the heat transfer also takes place in the medium by the conduction only. If the velocity is zero, if there is a velocity inside the medium, then the heat transfer takes place by the convection. For example, in the air medium, air molecules will never be stationary, always move from one state to another state, from one medium to another medium. So in case of the air, generally heat transfer takes place by the convection. In the liquid medium, as you know that, let us consider, take a bucket of water and try to heat from the back side. You will observe in the initial state there is no movement of the water molecules inside the bucket. But after some times you will observe certain movement in the bucket. So during the time duration during which there is no movement of the water molecules inside the bucket, that means the heat transfer naturally takes place inside the medium by the conduction. Whereas when the bottom of the bucket get heated and the primary layer of the liquid heated by the transfer of the heat, then the primary layer density will decrease and try to move outside. And such phenomena takes place very frequently after some times. So that is known as boiling. In the boiling process, you will observe the certain water come from the bottom and comes at the upper surface, and the upper surface liquid will try to go down. So such phenomena is known as boiling. So boiling is a purely convection process. Everyone knows that in the convection, the rate of heat transfer is equal to what rate is heat transfer directly proportional to the temperature difference and the surface area, and where H is known as convective heat transfer coefficient. So in case of the convection, we can say that the amount of heat transfer per second is equal to HA delta T. Everyone know, all of you know about the convection, and radiation. This is the radiation. As you know that in the universe, all body available above the absolute zero temperature is always radiating certain part of the energy. A body having more temperature radiating more energy,
another body having low temperature radiating less energy. But ultimately everybody radiating in the universe at every instant of time. And how it is related? It is as per the Esteban Boltzmann law. We know that the amount of heat radiated by the body is directly proportional to the e to the power 4, and this sigma is known as Stefan Boltzmann constant, and this is the area. So this is the amount of heat radiated by any body. Suppose that a body having temperature is 10 degrees centigrade, the amount of heat radiated by that body is sigma 8 and 10 to the power 10 273 plus 10 is equal to how much? 283 to the power t4. This is the amount of heat radiated by the body. So this is the basic concept. And from this equation, you can see that here this one is known as emissivity, and emissivity always vary from 0 to 1. If the body is black body, then the emissivity is 1. If the body is white body, the emissivity is 0. So this is known as emissivity. And emissivity, what is the emissivity? Emissivity is defined as the actual amount of heat emitted by the body to the maximum possible amount of heat radiated by the body, or the energy radiated by a black body. In case of the black body, generally the body emitted more amount of heat emitted by the body. So a perfect black body is a good observer and good emitter. All of you know that what is this? This is known as transmittivity, reflectivity, and observability. What is this? Let us consider कि G is the irradiation falling on this surface. The certain part of the energy get reflect back. This is the G rho. This is the amount of heat get reflected, and certain part of the energy get absorbed by this body. This one is the amount of heat absorbed by the body, and few parts of the energy get transmitted from this body. So the total amount of G, what is the G? This one is the G, and this G is always equal to the sum of this one, and this one. So this is the total amount of radiation falling on the surface, and this is the part of the energy get reflected. This is the part of the energy absorbed by the body. This is the part of the energy transmitted through the body. So this capital G is the sum of these three. If we divide both sides, we get such types of relation. So this one is known as reflectivity, this one is known as observability, this one is known as transmittivity. What is the observability? Observability indicates that how much part of the fraction of the energy falling on this surface get absorbed by the body. If transmittivity indicates that how much part of the energy falling on this surface get transmitted from this body, and reflectivity indicates that how much part of the energy get reflected from the energy irradiation falling on this surface. So this is known as reflectivity, observability, and transmittivity. This is the emissivity, monochromatic. All these things already discussed in the heat and mass transfer. So I do not like to go in the depth all this. All of you know, and already in the semester exam there is a question from this. So I am not discussing here too much. Source of the solar energy. Everyone knows that what is the source of solar energy? Sun. Sun is a source of solar energy. So in this content we will discuss about the sun, between the sun and the earth, position of the sun, solar constant, solar radiation, and intensity. This is the sun. What is the sun? This consists of hydrogen, helium, oxygen, carbon, neon, and freon. And inside the sun, generally nuclear fusion reaction takes place, that is known as nuclear. There are two types of nuclear, fusion and fission. So here fusion takes place, and it is more dangerous in compared to nuclear fusion. So the temperature of the surface temperature, outer surface temperature of the sun is 5800 Kelvin, whereas the core temperature, that is the inside the center temperature, is this much. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30.
So this much temperature is the core temperature. This is the huge temperature. This is the rotation of the Earth around the Sun. Planetary, as everyone know that our Earth is all complete one revolution in 24 hours. So here this is the Sun and the Earth is moving on this elliptical path. So what is this? According to this movement, Earth is moving in 365 days in one revolution. So in you can see here the 23 September and 21 March. That is the equal date. This is known as equal. On the 21 March and 23 September, the length of the day is almost equal. Whereas here on the 21 June, the length of day is long, very long. On the 21 December, it is short. And similarly, you can see that. So how the Earth rotating around the Sun, due to that, our climate condition get changed. In the summer season, the irradiation directly falling on the Earth's surface on the India, so we are feeling warm. But the Earth is also rotating around their axis. This is the Earth axis, and Earth is continuously rotating like this, rotating on their axis. So, in case of the winter season, the Earth is the sun ray directly not falling on the India. The sun, the irradiation coming from the sun falling somewhere, so we are feeling cold. Whereas in the June or up to from March to September, the sun ray, maximum part of the sun ray falling on the earth surface in the India, on the India, so we are feeling warm. The average distance between the earth and the sun is 149.5 million kilometers. This is the equinox, that's the equal length of the day. Equinox, this is the solstice, this one is the maximum day. This is also equinox, is the and this is the axis of rotation. As you can see, this is the axis of rotation. This is the north pole, this is the south pole, and earth is rotating like this. And how much inclination? This one is 23 degree. 23 degree inclination with the perpendicular orbit. This is the perpendicular orbit, and always earth get inclined approximately 23.5 or 23 degree with the perpendicular axis, and always earth rotate like this. Assume that, suppose that India is here, so sunlight is coming here, coming directly on this surface. If the earth will rotate like this one, then the earth certain after certain time duration, this surface will get rotate from here to here. So the sun irradiation coming from the sun will not fall on this surface. So another surface, at this point, the sun irradiation will fall on the another surface. So in that case, we will feel winter or cold. As you know that I already discussed about it. This is the meridian, and this is the length of the day in the June. And as you can see in the 21 June, the length of the day is bigger, whereas if we move from June to December, the length of day decreases. As you can see, this is the rising of the sun, this is the year sunset. So length of the day is bigger, and ultimately when we move from year to year, as you can see, the length of the day getting decreasing. All these things already discussed as in Mithalantic journey theory. So I am not going to what is the solar constant, already discussed. Solar radiation, latitude, altitude, already discussed. Reverse of the energy on the solar energy distribution, already discussed. This is the solar energy distribution. No pollution. Advantage of the using solar. Everyone know that what is the advantage. Major advantage is no pollution, and in energy
कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड CO2 रिडक्शन। जनरली हम लोग देखते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का यही रीज़न है कि आपका जो CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कंपोनेंट है। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आपने दो तरह की चीज़ें सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है और ग्लोबल वार्मिंग गैसेज क्या है। जब ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया तो वही आपका क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यदि आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो एम्बियंट का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो हम लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता। हम लोगों की सर्वाइवल, जो ह्यूमन बींग्स है या जो जीव जंतु हैं, उनकी सर्वाइवल मुश्किल होती। तो ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस समय क्या था, हमारे लिए एडवांटेज की तरह काम कर रहा था। जो अर्थ जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे, जो ग्रीन हाउस गैस था वो उसको प्रोटेक्ट, अर्थ को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा था और उस हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैस था उसका कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा हो गया कि अब क्या है, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है कि उस गैस का तो टेम्परेचर है ही, एज वेल एज जो एनर्जी जो अर्थ से निकल रही है वो अल्टीमेटली यहीं पर रह रही है। जो पोल्यूटेड हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है डे टू डे, हम लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री यूज हो रही है, उससे जो पोल्यूशन जनरेट हो रहा है वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो आपका ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है। वही आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या है, हमारे लिए डेंजर है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अभी आपने देखा था जो उत्तराखंड में त्रासदी आया था, जो वहाँ पे बद्रीनाथ धाम में, वो इसी का रीजन था। क्योंकि हो क्या रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है वो प्रोटेक्ट कर रखा है, यहाँ से जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है वो बाहर निकलना चाहिए, वो निकल नहीं पा रहा है, अर्थ सरफेस पे ही कवर्ड है। तो अल्टीमेटली क्या है, एम्बियंट का टेम्परेचर जो है ऑन एवरी टेम्परेचर है 2 डिग्री 1.7 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन एवरी डिकेड आपका एम्बियंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब एम्बियंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो आपका ग्लेशियर्स है, जो आइस कैप है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हिमालय की जो आपके आइस कैप है, वो सारे क्या होंगे, पिघलना शुरू करेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आइस आपका मेल्ट करेगा। जब आइस मेल्ट करेगा तो एक ह्यूज क्वांटिटी एक ही साथ आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये त्रासदी जो आपने देखा था वो होगा। या फिर क्या होगा, जो कहीं पे अगर उस तरह के वाटर कलेक्ट होगा, जो आपका कवर, जैसे कि कोई झील बना होगा उसमें वाटर होगा, स्टोर होगा और उसमें आइस से वो कवर होगा। जब आइस मेल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो झील क्या है, जो वाटर जो वहाँ पे कलेक्टेड है वो वाटर टोटल एक ही साथ ह्यूज अमाउंट में आएगा और फिर क्या होगा, उस तरह की त्रासदी होती है। और ये चीज़ें तब तक होता रहेगा जब तक कि हम इन्वायरमेंट के साथ बाय द नेचर फॉर द नेचर की कंसेप्ट नहीं अपनाते। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, इन्वायरमेंट हम लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो अगर आपको अपने आप को सेव करना है, तो आपके आने वाले जनरेशन को सेव करना है, तो हमें अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, विंड एनर्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हाइड्रो एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा। तो ये सारे हमें चीज़ों को फॉलो करना पड़ेंगे, इसी पे डिपेंडेंसी हमें पानी है। अगर आप कोल यूज करेंगे, डीजल यूज करेंगे, पेट्रोल यूज करेंगे तो CO2 जो है ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा है सो एक्यूमुलेशन होगी अर्थ सरफेस के अराउंड में, और फिर वो हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, उसका इफेक्ट हमें ही पड़ेगा, हमें आपको झेलना पड़ेगा। Energy production reduction. Advantage of using solar energy, as you can say, the solar thermal heat, the solar thermal energy, ये देखिए आपका टोटल कैपेसिटी इन द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। ये चीज़ें भी हमने इंडिया का भी डिस्कस कर रखा है। ये सोलर फोटोवोल्टिक भी हमने डिस्कस कर रखा है, क्या क्या हो सकता है। आइए यहाँ पे सोलर सेल ये दे रखा है, सोलर थर्मल एनर्जी यहाँ पे आता है। ये है हमारा हाउ टू यूज सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, ये हमारा फ्लैट कलेक्टर होता है। फ्लैट कलेक्टर होता है आपका थर्मोसाइफन रूल जो होता है उस पर काम करता है। थर्मोसाइफन रूल क्या है कि आपका जो वाटर होगा वो क्या होगा, जो हॉट वाटर होगा वो कोल्ड रीजन को जाएगा, कोल्ड जो होगा वो हॉट रीजन को जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सर्कुलेशन जो होता है ड्यू टू थर्मोसाइफन रूल होता है। ये क्या है, आपका सोलर रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन इस सरफेस पे आएगा, ठीक है। इसमें एक टैंक लगी होगी, यहाँ पे एक टैंक होगा जो स्टोरेज टैंक होता है, उससे वाटर आएगा, वाटर क्या होगा, हीटअप होगा। फिर ये है जो आपका यहाँ से ही किया वाटर हीट होकर फिर इधर आ जाएगा, वाटर हीट होकर ऐसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कोल्ड वाटर आएगा वो नीचे रहेगा,
उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जब ये हीट होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर होकर टैंक में चला, और ये रिसर्कुलेशन प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका हीटिंग नहीं होगा। जब आपको जरूरत हो आप यूज कर लीजिए फिर उसको। ये कंसेप्ट होता है इसमें आप देखते हैं। अब क्या है कलेक्टर एंड द वर्किंग टेम्परेचर। जो कलेक्टर आप देखते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उसके वर्किंग टेम्परेचर क्या होते हैं। तो जो टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कलेक्टर। In case of the low temperature collector, flat plate collector, evacuated tube collector, and compound parabolic collector mainly used. Okay, what is the flat plate collector? As you can see on the roof of your hostel, that is a flat plate collector, and its efficiency is around 20 to 25%. Whereas evacuated tube collector is approximately 85%. This is a new technology, and compound parabolic collector is also used. Its efficiency approximately 30%. And the temperature यदि देखा जाए तो in the flat plate collector the maximum temperature would be 80 degrees centigrade. In case of the evacuated temperature, the maximum temperature would be 200 degrees centigrade, and in the case of the compound parabolic it is around 240 degrees centigrade. So this is the collector types for the basis of the low temperature. In case of the medium temperature, single axis tracking linear फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर, मैंने कल ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। आपने देखा था कि लिनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर एक टावर टाइप का लगा हुआ था, और नंबर एक और शॉपिंग एरिया में क्या था, रिफ्लेक्टर लगे हुए थे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या था उस रिसीवर पे कर रहा था। तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके जो टेम्परेचर होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 250 के अराउंड आएंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 600। पैराबोलिक कलेक्टर ये भी आपने कल देखा था, इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। And the cylindrical drop collector, its temperature around 300 डिग्री सेंटीग्रेड। and two axis जो आपने डिस्क देखा था, ठीक है, और उसके बाद पैराबोलिक डिस्क रिफ्लेक्टर एंड पॉलीओस्टेरिक कलेक्टर, इसके टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इसकी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पैराबोलिक डिस्क, हमने आपको 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाया था। ये है आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जा सकता है। तो इन केस ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर आप हाई टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं, लो टेम्परेचर एज पर आवर रिक्वायरमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। ये है हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या होता है कि इसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, कॉपर्स के ट्यूब ऐसे लगे होते हैं, और ये क्या आता है, ये हेडर कहलाता है। ये जो मेन होता है ये हेडर कहलाता है, और इसमें ये जो होता है ये डाउन कमर होता है। आप यहाँ से इसमें कनेक्ट हो गया, टैंक है, टैंक से यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और ये डाउन कमर से क्या होगा, वाटर जो है जैसे ही इसमें आएगा उसके बाद है सो जब इसमें भरना शुरू करेगा ट्यूब में। अब जब ये यहाँ से जब हीट इंटर करेगा तो वाटर को क्या करेगा, हीटअप करेगा। जब वाटर को हीटअप करेगा तो हॉट वाटर टैंक में चला जाएगा, और उसके बॉटम में जो कोल्ड वाटर होगा, और हॉट वाटर ऑलवेज ऊपर में स्टोर होगा, तो दो से बेस से क्या होगा, बॉटम में उससे कोल्ड वाटर होंगे, वो कोल्ड वाटर कंटिन्यूस में आता रहेगा, हॉट होकर वहाँ पे जाता रहेगा, और ये फिर कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि वाटर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज ना करे। अगर आपने इसको यूज कर लिया तो फिर यूज कर लिया। तो इस तरह से बने होंगे। इसमें देखेंगे ये डिजाइन होता है, ये आपके ट्यूब्स होते हैं, ये आपके ट्यूब्स हैं, ये है आपके ट्यूब्स, ये है गैसकेट, इस तरह से बना होता है, ग्लास इसमें लगा होता है, ये आपका हेडर है, ये जो आप देख रहे हैं ये हेडर है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लेजिंग है, ग्लास का एक ग्लेजिंग विंडो जैसे ग्लास लगा होता है, ताकि जो लो वेवलेंथ जो आपका रे है, इरेडिएशन है, वो इंटरप्ट कर जाए तो वहाँ से निकल ना पाए, इसीलिए इसमें ग्लेजिंग लगाया जाता है। सिमिलरली ये क्या है, राइजर ट्यूब है जिससे वाटर को इंक्रीज करेगा। ऑब्जर्वर प्लेट है, ये आपका ऑब्जर्वर प्लेट, ये बैक साइड में इसके लगा हुआ है। इंसुलेशन फिर इसमें लगाया जाता है, फिर केजिंग लगाया जाता है। इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ से हीट बाहर ना निकल सके। अगर हीट बाहर निकल जाएगा तो फिर इफेक्टिवली ये काम नहीं करेगा। हमें हीट क्या करना है, इस ट्यूब में जो वाटर रखा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। ये देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसी तरह से एक ग्लेजिंग ग्लास लगा हुआ ऊपर से, इसमें ट्यूब होंगे, और उसका जो सरफेस होता है ब्लैकिश कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो इसको हम लोग ज़्यादातर कोल्ड कंट्री में आप देखेंगे, अपने यहाँ भी हॉस्टल वगैरह में यूज होता है विंटर के सीजन में, तो इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए इसमें क्या है, ग्लेजिंग ग्लास नहीं लगा रखा है, ये ओपन है, अपने छत पे लगा है। इसके दो एडवांटेज है।
एक तो आपको विंटर में हॉट वाटर भी मिल रहा है, दूसरा क्या समर सीजन में आपका जो सरफेस जो रूफ जो है जो हीटअप होता है उससे भी सेव हो रहा है। इस तरह के आपके हॉस्टल में लगे होते हैं, इसमें टैंक लगे होते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक तरह का फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, बट इसमें क्या कर रखा है, इस तरह से डिजाइन कर रखा है, इसमें ओनली हीट ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये आप इस पे ग्लेजिंग ग्लास नहीं है। ये होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, अनग्लेज्ड कलेक्टर ऑब्जर्वर। ये सब आपके कलेक्ट ये ऑब्जर्वर कलेक्टर विद ट्रांसपेरेंट हीट इंसुलेटर, इसमें इंसुलेटर लगा दिया है। तो इस तरह से ये डिजाइन करते हैं। ये देखिए, ये कॉपर का ट्यूब लगा हुआ है, ऊपर से इसको ग्लेजिंग लगाया गया, फिर ग्लास लगा दिया, ये नीचे इंसुलेटर लगाया गया। अब जब हीट आएगा तो ये जो ट्यूब है इसके साथ जो ये मेटेलिक सरफेस जो जो सीट टाइप का लगा होता है वो उससे कांटेक्ट में होता है, तो लाइक अ फिन ये बिहेव करता है और उसको हीटअप करता है। इसको हीटअप होने से क्या होता है, वाटर जो इसके इंसाइड में है वो हीट हो जाता है और हम उसको यूटिलाइज करते हैं। मेन लॉसेज ऑफ द बेसिक फ्लैट प्लेट कलेक्टर ड्यूरिंग द रेगुलर ऑपरेशन। अब ये देखिए 100% जो रेडिएशन आ रहा है उसका 8% तो रिफ्लेक्ट हो गया। अब ग्लास लगा रखा है तो 2% तो ग्लास एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जब हीट इसमें इंटर करेगा, जो रेडिएशन इसमें इंटर करेगा, उसमें अब ट्यूब सरफेस से सर्टेन पार्ट क्या होता है, ब्लैकिश कवर होता है, बट सर्टेन पार्ट विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, दैट इज द 8%। एंड द जैसे कि वो ब्लैकिश है, गुड ऑब्जर्वर क्या होगा, गुड इमिटर होगा, ऑलरेडी ये 6% इमिट कर देता है। एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू निकल जाता है। सो ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 60% ये ऑब्जर्व करेगा। एंड हीट कंडक्शन, इंसुलेशन लगाने के बाद हीट सर्टेन यहाँ से निकल जाता है, दैट इज द 3%। सो ये सारे लॉसेज हैं जो इसमें। ये होता है आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, जिसकी मैंने बताया कि जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होता है उसकी एफिशिएंसी अराउंड 80 to 85% होती है। ऐसा ये जो टेक्नोलॉजी है पहले चाइना वालों ने इसको इन्वेंशन किया है। जो आप हीट का जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर आप यूज करते हैं उससे बेटर एफिशिएंसी इसकी होती है। अब ये क्या है, ये एक ग्लास का ट्यूब बना होता है और इसके बीच में इवैक्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि देयर इज नो एनी एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द ट्यूब। इस दोनों सरफेस के बीच में ये ट्यूब देख रहे हैं, ये सेंटर में जो है इवैक्यूएटेड हो जाता है। इवैक्यूएटेड होने से क्या होगा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स जो हीट को ट्रांसफर, आप जानते हैं कि एयर इज ए बेस्ट इंसुलेटर। एयर क्या होता है, अच्छा इंसुलेटर यही होता है कि ठंडी के दिनों में हम लोग रजाई और कूलिंग कपड़े यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर इंट्रैक्ट हो जाता है, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये इवैक्यूएटेड ट्यूब जो है इसमें से एयर को यहाँ से आउट कर दिया जाता है। ये जो ट्यूब है, दो सरफेस है, इसके बीच से एयर को निकाल दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है। और जब इसमें सनलाइट आएगा तो कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से रेडिएशन 100% इन कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन कर पाएगी, तभी जाके ज़्यादा कन्वर्जन हीट को ये हो पाएगा। तो ये आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। यहाँ पे रिंग की ट्यूब रिंग है, हीट पाइप एंड एल्युमिनियम सर्किल, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये आपका लीक पैड है, ये विंड पैकेट है। तो इस तरह से ये सारे डिजाइन इसमें दे रखा है। बेसिक कंसेप्ट आप देखिए, ये हीट पाइप। अब ये है आपका जो हीट पाइप होता है, ये होता है, कॉपर ट्यूब लगा होता है और इस तरह से ये ऊपर से कवर होता है, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब है। अब ये जो कॉपर ट्यूब है इसके बीच में ये एयर इंट्रैक्ट होता है, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब में क्या करते हैं, इस एयर को यहाँ से निकाल देते हैं। जब एयर को निकालेंगे तो जो इरेडिएशन फॉलिंग आउट हो रहा है वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इरेडिएशन इस कॉपर ट्यूब पे पड़ेगा और इसको क्या करेगा, ये हीटिंग करने में यूटिलाइज करेगा। इस तरह से ये बना होता है। इसकी सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि ये वैक्यूम जनरेट करना और इसको प्रॉपर्ली सील पैक करना ये थोड़ा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, जो फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ें गड़बड़ होती है और चाइना वाले सस्ते में बना के दे रहे हैं, तो ये लोग जनरली चाइना से ही परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब। इसमें देखिए ये है, ये भी आपका वही है, इवैक्यूएटेड ट्यूब बना हुआ है, ठीक है। ये अंदर ट्यूब है, उसके बाद ये ग्लास है जिसको इवैक्यूएटेड कर दिया गया, तो ग्लास इस तरह से रिफ्लेक्टर सिस्टम बना दिया ताकि जो भी रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर फॉलिंग आउट होगा और मैक्सिमम रेडिएशन इस पर फॉलिंग आउट होगा, तभी ये क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब का कलेक्टर एफिशिएंसी। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये पहले जो आपने स्लाइड्स देखे थे कलेक्शन, ये है आपका पैराबोलिक ट्यूब, ये भी हमने पहले
डिस्कस किया है। पैराबोलिक में आपने ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, ये ट्यूब पे जो लाइन ट्यूब जो लगा होता है ऑब्जर्वर ट्यूब उस पर आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी क्या है आपको ऑब्जर्व होता है। हीट को जैसे कि वाटर को वन साइड से इंटर कराते हैं, दूसरी साइड से आउट ले देते हैं, तो वाटर तब तक क्या होता है आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका लीनियर फेंसर रिफ्लेक्टर, इस तरह से लगे होता है जो आपने देखा था कि ग्राउंड ऊपर में ऐसे लगा हुआ है और रिफ्लेक्टर ऐसे कर्व टाइप के लगे हुए हैं। ये क्या है आपका लीनियर फेंसर रिफ्लेक्टर है। ये आपका पैराबोलिक डिस्क का जो आपको मैंने सिटी साइन का भेजा था वो इसी तरह का। तो ये क्या सिंगल है, इसमें क्या होता है नंबर्स ऑफ डिस्क लगे होते हैं और इधर कहीं पे लगा रखा होता है रिसीवर। तो क्या होगा सारे के सारे डिस्क का फोकस जो होगा उसी रिसीवर पॉइंट पे फिक्स होगा, ताकि ये जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो टोटल का टोटल रेडिएशन वहाँ पे जा सके, वहाँ पे फॉलिंग आउट होगा। फिर आप उसमें वाटर को सप्लाई कीजिए और वाटर को स्टीम कन्वर्ट करके आप जिस पर्पस के लिए यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आप होलियोस्टैटिक फील्ड कलेक्टर, इसमें भी आपने देखा था कल कि ना एकर्स ऑफ एरिया में ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं और इस तरह से ये रेंज किए होते हैं, इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि जैसे जैसे सन रोटेशन करेगा ये भी रोटेट करेगा और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑलवेज यहाँ पे आके मीट करेगा। ये तो यहाँ पे क्या होगा हाई कंसंट्रेशन आपको सोलर रेडिएशन मिलेगा, नंबर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा और इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे टेम्परेचर वेरी हाई होगा और जब आप वाटर को वहाँ पे सप्लाई करेंगे तो वाटर इजीली आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रेशराइज स्टीम को आप यूज करके टरबाइन रोटेट करा लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी ले लीजिए या फिर और कोई अदर्स वर्क है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर, ये आपका सोलर वाटर हीटर है जो आपके हॉस्टल पे लगा हुआ है, इसी तरह का लगा होता है फ्लड प्लेट कलेक्टर। ये आपका ईटीसी है। ईटीसी में आप देखेंगे इस तरह से इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है। तो इससे क्या होता है कि ये ट्यूब का जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है। अगर हम फ्लैट सरफेस को ओपन रखें तो कम एरिया होगा, अगर कर्व सरफेस को रखेंगे तो ज़्यादा एरिया भी बढ़ जाता है और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है ड्यू टू द इवैक्यूएशन। लो टेम्परेचर एप्लीकेशन मेनली यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड इसीलिए नाम दिया है क्योंकि ट्यूब जो होता है इवैक्यूएटेड होता है, उसमें नथिंग कुछ भी नहीं होता है। सोलर वाटर हीटर, ये आप देखिए डायरेक्ट ओपन लूप, ये जो आपको दिखा रखा ये हमारा टैंक है। इसी टैंक से आपका यहाँ से ये बॉटम में देखिए ये हॉट वाटर है जो मैं बता रहा था कि टॉप सरफेस पे आकर स्टोर होगा, कोल्ड वाटर नीचे यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से ये इस तरह से जिग जैग बन के पाइप में उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। तो उस समय क्या होगा वाटर ये हीटर। अब इवैक्यूएटेड ट्यूब में देखिए इसमें क्या है डायरेक्ट ओपन लूप है, थर्मोसाइफन रूल है। इसमें क्या है इनडायरेक्ट है, क्लोज लूप है। क्लोज लूप कहने का मतलब कि इंडिविजुअल ट्यूब आपका हेडर ये टैंक से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कोल्ड वाटर इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, हीटअप होगा और फिर इसी ट्यूब से बैक जाएगा, जिससे आया है उसी से जाएगा, इसका अनदर वे नहीं। लेकिन इसमें क्या है नीचे से ये इन कर रहा है और ऊपर से ये आउट टैंक में कर रहा है। तो ये है आपका इनडायरेक्ट क्लोज लूप, डायरेक्ट क्लोज लूप, ओपन लूप। ये क्या है एक्टिव, ये आपका यूजर है थर्मोसाइक्लोन की तरह ही काम चलता है। ये भी आपका ऐसे ही टैंक है, ये ओरिजेंटल है, ये आपका वर्टिकल है। वैसी बात है कि ऊपर में आपका हॉट वाटर, नीचे में कोल्ड वाटर तो इसलिए रन होगा। इनडायरेक्ट क्लोज लूप में अगर देखें तो ये है आपका इस तरह से इनडायरेक्ट इसको यूजर, ये आपका यूजर, ये आपका हीटर, इस तरह से ये फिनोमेना। इंस्टॉलेशन डायरेक्शन, ये तो हम लोग जानते हैं कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो साउथ फेसिंग और साउथ हेमिस्फीयर में होगा तो नॉर्थ फेसिंग। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपका फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है और सोलर थर्मल सिस्टम। इंस्टॉलेशन टिल्ट एंगल, as you know that the angle of the collector is roughly equal to the local latitude angle. Annual heat collection and the directional tilt angle, northern hemisphere. This is the direction shift from south and this is the increasing collection area. ये आपको दिखा रखा है रेसिडेंशियल हॉट वाटर सिस्टम। आपने देखा होगा अपने घर में या फिर हॉस्टल पे देखा है, कोई चीज़ यहाँ पे बना के दिखा रखा है। ये आपका
हॉट, ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है और आपका ये देखिए सावर वगैरह ये बाथरूम वगैरह में यूज करेंगे उसके लिए यूज करेगा। लार्ज स्केल सिस्टम, डोमेट्री, हॉट वाटर, स्विमिंग पूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सारे भी यूज होते हैं। और ये हॉस्टल में आप चले जाएंगे, स्विमिंग पूल में चले गए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए सभी जगह हम लोग हॉट वाटर यूज करते हैं, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, इंडस्ट्रियल एनर्जी डिमांड कंसिस्ट ऑफ हीट रेदर देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अबाउट 50% of industrial heat demand is located at a temperature up to 25 degrees centigrade. Solar water heater, food and beverage market potential of the industrial process in industrial process। आप अगर देखें तो फूड एंड बेवरेज में क्या क्या आप कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर। ड्राइंग का केस कर सकते हैं, जो भी ग्रेन्स वगैरह होता है उसको ड्राई करने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, स्टेबलाइजिंग के लिए, हीट ट्रीटमेंट, ये सारे चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वॉशिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग के लिए हम लोग स्टीम यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, वेरियस केमिकल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल सेटअप हीटिंग ऑफ द बॉयलर, फीड वाटर, हीटिंग ऑफ द प्रोडक्शन और स्पीटीज। These are the solar thermal power and conversion of the sunlight into electricity. Direct means photovoltaic, डायरेक्ट मीन्स ये फोटोवोल्टिक सिस्टम आता है कि आपने डायरेक्टली लगाया पैनल को और वायर से कनेक्ट कर दिया, आपको करंट जनरेशन होने लगा। इनडायरेक्ट मीन्स में क्या कंसंट्रेटेड सोलर पावर होता है, जो आपने देखा कल देखा था कंसंट्रेटेड सोलर पावर कलेक्टर वगैरह जो थे वो इनडायरेक्ट मीन्स में आएंगे। पहले आप हीट सन से आप इरेडिएशन एनर्जी लेंगे, जो हीट में आप कन्वर्ट होगा, वो हीट क्या करेगा स्टीम बनाएगा और वो स्टीम जो है टरबाइन पे जाके एक्सपेंड होगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये इनडायरेक्ट मीन्स कहलाता है। बट फोटोवोल्टिक सिस्टम में डायरेक्ट हमारा क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट और हाई ग्रेड एनर्जी में। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, टाइमिंग्स ऑफ सन ट्रैकिंग, कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर, ये सब है हाई टेम्परेचर में। आप देखिए पैराबोलिक है, ये है ये सोलर थर्मल पावर, ये आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक टाइप का एक टर्फ लगा हुआ है। नंबर्स ऑफ पैराबोलिक टर्फ लगे होंगे जिसमें ट्यूब होंगे और वाटर यहाँ से फीड करेगा, यहाँ से फीड करेगा और हीटअप होते होते हीटअप होके ये कहाँ चलाएगा, ये टैंक में आके स्टोरेज होता है। उसके बाद ये टैंक में स्टोरेज होने के बाद ये जाएगा आपके टरबाइन पे जाएगा, यहाँ टरबाइन से एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने का ये रिटर्न बैक जाएगा। टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट, कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं अपने यहाँ और कौन कौन से। पैराबोलिक ट्रफ 15% इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, लैंड का ऑक्यूपेंसी लार्ज, वाटर कूलिंग 3000 और ड्राई, स्टोरेज पॉसिबल। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हाइब्रिडाइजेशन इन सोलर थर्मल, इसमें आप सोलर के साथ हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूल बैकअप, सोलर डायरेक्ट पंप, तो उसके बारे में बताया। ये सारे टेक्नोलॉजी हमने कल ही डिस्कस कर रखा है कि क्या है ये आप देखिए सोलर पावर प्लांट, ये आपका स्पेन में है, इसका ये है आपका एंड्रोसॉल सोलर पावर स्टेशन, स्पेन में ये भी है, ये भी आपका स्पेन में है। एक्टिव कूलिंग, यूज पीवी पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर। पैसिव कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सोलर थर्मल वेंटिलेशन यूज करते हैं। सोलर थर्मल कूलिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक स्टीलिंग में, थर्मो एक्यूस्टिक मैग्नेटिक। अब बोले वेपर कंप्रेशन में कैसे यूज करेंगे, तो अभी तो आपको पता होगा कि हमने सोलर रेफ्रिजरेटर बनाया, उसमें भी कंप्रेसर यूज होता है।
उसी में हम एसी में क्या करेंगे, जो एसी कंप्रेसर है उसको रिप्लेस करके डीसी कंप्रेसर लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसी जो होगा वो सोलर एसी में कन्वर्ट होगा और वेपर कंप्रेसर सिस्टम की तरह काम करने लगेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिक आपको पता ही है कि जो हॉट और कोल्ड जंक्शन होता है, एक हॉट इंड होगा, एक कोल्ड सीबेक पर्टियर इफेक्ट पे जो बात काम करता है, उस तरह से ये होता है स्टेरिंग थर्मोमीटर। ये सारे हैं थर्मोकूलिंग सिस्टम जो आप यूज कर सकते हैं। Solar cooling benefit from the better time match between supply and demand of the cooling। ये आपका देखिए कूलिंग लोड है, ये आपका सोलर रेडिएशन है, लेकिन सोलर रेडिएशन को हम 100% यूज नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा क्या होता है, कूलिंग लोड फुलफिल नहीं होता। तो कूलिंग लोड है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग ग्रिड पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोलर एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये है आपका सोलर थर्मल कूलिंग, सिंपल सा सोलर थर्मल कूलिंग जैसे आप यूज करते हैं वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, उसी तरह का। ये सोलर हीट लिया, ये आपका जनरेटर है, इसमें इसने हीट सप्लाई कर दिया, उसके बाद ये चला जाएगा आपका, यहाँ से निकलेगा, ये आएगा यहाँ, ये आपका कूलिंग है, ये इस तरह से ये नंबर सब कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। ये आपको दिखा रखा है, जो आपको याद होगा, जो उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, तो ये चीज़ें आपको दिखाएंगे। सोलर थर्मल कूलिंग ऑब्जर्वेशन, वेपर ऑब्जर्वेशन, लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर का पहले ही बता रखा आपको। इसका ऑब्जर्वेशन कूलिंग, सिलिका जेल एंड डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम ये कहलाता है। ये डेसिकेंट इवोपरेटर कूलिंग जो ओपन साइकिल सिस्टम होता है, ये सारे इसमें सोलर यूज होते हैं। तो सोलर सिस्टम है, सोलर थर्मल सिस्टम आप यूज करके ये सारे कूलिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं। कन्वेंशनल कंप्रेशन कूलिंग, वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो आप जानते हैं वही मेन है, जिसमें कि कंप्रेसर क्या होगा, ड्राइव होगा सोलर से। ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, जो मेन कंपोनेंट होते हैं यही होता है। यहाँ पे एक जनरेटर होगा, जनरेटर में हीट सप्लाई होगा और क्या करेगा, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर रिप्लेस हो जाएगा आपका ऑब्जर्वर और पंप एंड जनरेटर में रिलीज होता है, और फिर ये सिस्टम कंटिन्यूसली एक ये दिखा रखा कि सीओपी चिलर के साथ कैसे चेंज होता है। क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल सिस्टम, कौन कौन सा क्लोज साइकिल है, ओपन साइकिल, क्लोज रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट इज इन द कांटेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें आप देख के पढ़ लेंगे, इसमें पूछा है। सोलर असिस्टेड कूलिंग इंस्टॉलेशन, अभी आप देखें तो ऑब्जर्वेशन जो कूलिंग सिस्टम है सोलर से, जो ज़्यादातर आपका सोलर ऑब्जर्वेशन सिस्टम ही यूज होता है, 71%। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ये आपका है 13%। उसके बाद डेसिकेंट एनर्जी कूलिंग जो है सॉलिड, ये आपका है 14%। एंड डीसी लिक्विड जो है आपका 2%। डीसी सॉलिड और डीसी लिक्विड, डीसी सॉलिड कहते हैं हम लोग डेसिकेंट सॉलिड मटेरियल के लिए, जैसे सिलिका जेल वगैरह हो गया। डीसी लिक्विड जो होता है वो लिक्विड डेसिकेंट मटेरियल होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सोलर थर्मल कूलिंग, सोलर थर्मल कूलिंग में अगर देखें ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो जनरली यूज करते हैं। रेफ्रिजरेशन वर्कशॉप, मार्केट एक्टर सिस्टम, कॉस्मेटिक्स, सोलर थर्मल कूलिंग ये आपको दिखा रखा, सोलर बेसिक कूलिंग, सोलर वेंटिलेशन, सोलर चिल। अब सोलर वेंटिलेशन का केस क्या है, इसको जरा सा देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये आप देखिए, ये आपका सन एनर्जी आ रहा है, हॉट एयर कॉलम, और ये क्या है, सोलर कलेक्टर, ये आपका सोलर कलेक्टर, एयर इनसाइड द रूम, यहाँ पे आप देखिए। अब क्या होगा, ये जब हीटअप करेगा, सन जब इसको हीटअप करेगा तो ये क्या करेगा, ये आपका ऐसा मूव, ये जब मूव करेगा तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इसको रोक नहीं पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पर क्या है, इनसाइड द रूम क्या है आपका, ये एयर है। अब वेंटिलेशन देना तो इस सरफेस को क्या किया, हीट किया। जब हीट करेगा तो ये कोल्ड एयर क्या होगा, हॉट होगा, हॉट होने के बाद यहाँ से निकलना चाहिए, ये निकलेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सोलर थर्मल कूलिंग और वेंटिलेशन। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जो पीने के लिए पानी जो बनाते हैं हम लोग समंदर से पानी लेके, उसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये ग्लास लगा होता है इसमें, ठीक है, वाटर इसमें डाल दिया, कंटेनमेंट वाटर यहाँ पे है,
जब ये हीट आएगा, हीट आने से क्या होगा, सोलर से रेडिएशन आएगा, ये वाटर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। वाटर जब इवोपरेट होगा, ये जो टॉप सरफेस है यहाँ से इवोपरेट होकर उठेगा तो कहाँ आएगा, इस सरफेस पे ही आएगा। इस सरफेस पे जब आता है ये धीरे धीरे ये यहाँ से स्लाइड डाउन होकर यहाँ पे आके ये यहाँ पे प्योरीफाई वाटर को स्टोर कर दिया जाता है। उस वाटर को हम लोग पीने के लिए यूज कर लेते हैं, इसको अपना टैंक में स्टोर कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, जो सी लेवल जहाँ पे समंदर वगैरह है वहाँ पे ये जनरली यूज होता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि समंदर का पानी जो होता है वो खारा होता है, आप उसको पी नहीं सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें अपनाया जाता है। द सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन द सोलर स्ट्रीट the sophisticated system water heat is minimized by the collecting the heat from the condensed water vapor and preheating the incoming water source. सोलर थर्मल एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सोलर कूलिंग में हम यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग क्या होता है कि आपको को जनरेशन का केस होता है प्रोसेसिंग हीटिंग, कि आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहीं ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी ये सप्लाई करता है। सी वाटर डिस्टिलेशन के लिए भी यूज करता है, सी वाटर को पीने के लिए बनाने के लिए। उसके बाद फेकेड इंट्रीगेशन, उसके बाद स्पेस हीटिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए यूज होता है। हॉट वाटर सिस्टम फॉर मल्टी फैमिली हाउसेज, तो मल्टी फैमिली हाउसेज को हॉट वाटर सप्लाई करने के लिए यूज होगा। स्मॉल हॉट वाटर सिस्टम के लिए यूज होगा। और ये सारी चीज़ें जो है जनरली यूज होता होगा। ये है ताइवान का, आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है ये कन्वेंशनल इंस्टॉलेशन वे, ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। कन्वेंशनल इंस्टॉलेशन वे इन ताइवान, फ्लैट प्लेट कलेक्टर को इंस्टॉल कर रखा। ये इसका टैंक है, इस टैंक में क्या हो जाएगा, वाटर हीटअप होकर यहाँ पर स्टोर होगा और उसके बाद ऐसे ये कंटिन्यूस से भी पहले चलता रहेगा। इस स्टोर वाटर को आप यूज कर लीजिए डे टू डे लाइफ। डैमेज ड्यू टू टाइफून, ये डैमेज हुआ। रूफ इंटीग्रेटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑन द हाउस इन डेनमार्क। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर थर्मल टू EU, ये था आपका यूरोपियन यूनियन है। हाँ, यूरोपियन इस तरह करके ये है 28 कंट्री का यूनियन, उसी के बारे में यूरोपियन यूनियन का केस होता है। यूरोपियन यूनियन यही है, ये है जो उसके बारे में कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर थर्मल टू द यूरोपियन यूनियन, हीट डिमांड बाय द सेक्टर, हीटिंग एंड कूलिंग डिमांड 2006 में ये था। उसके बाद सोलर थर्मल इसके 2% को 0.2% को किया। हीट एंड डिमांड ये था 9%, ये इसने खुद किया गया सोलर थर्मल 3.6%। ये है 2020 का, 2030 तक ये 20% फुलफिल करेगा। फिर आपका तो ये आपका ये डिमांड हो गया, फुलफिल हो गया 15%। उसका हीट डिमांड इन 2050 ये होगा, और सोलर थर्मल जो फुलफिल करेगा वो ये करेगा। इस तरह से धीरे धीरे ग्रोइंग मोड में है आपका सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिशियन यूजिंग सोलर थर्मल। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी लोकेशन जो अर्थ पर आपकी कंट्री की जो लोकेशन है वहाँ पे अगर प्रॉपर इरिगेशन आएगा तभी आप सोलर एनर्जी को यूज कर पाएंगे। अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं आ रहा है तो सन से इरिगेशन नहीं आएगा तो आप उसको कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जब मिलेगा ही नहीं उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, कोई भी आप जनरेट नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफर ही हो सकता। सोलर रेडिएशन हैज ए लो एनर्जी density relative to other common energy source. Unstable energy supply. Solar energy supply is restricted by time and geographical location, easily influenced by weather condition. Obviously बात है, जब वेदर कंडीशन खराब होगा तो क्या होगा, इजीली इन्फ्लुएंस होगा। अभी क्लाउड है, क्लाउड की वजह से क्या है आपका इरेडिएशन प्रॉपर्ली और सरफेस पे नहीं आ रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा कि वो इफेक्टेड होगा, आपको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी का जो मेन जो एस्पेक्ट्स है ये है जो इफेक्ट डालता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अगर देखें तो हाई कॉस्ट कंपेयर विद द ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम। अब सोलर थर्मल सिस्टम को देखेंगे तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए क्या होता है इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। कैपिटल कॉस्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द
traditional ones, especially for the portable. Solar water heater must economically competitive technology by now. The need of solar water heater is inversely proportional to the low consumption. सोलर वाटर हीटर की कॉस्ट कम होती है बट इसकी इफिशियंसी भी बहुत कम है। आपको ईटीसी की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो वो बेटर है, बट उसको डिजाइन करना, उसको सील पैक करना थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है। क्वेश्चन आपको करने की जरूरत, ये था जो हमें सोलर थर्मल हीटर में कुछ चीज़ें में हमने डिस्कस किया। ऑलमोस्ट आपको सोलर थर्मल हीटर के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? बढ़िया है भाई, सभी लोग निकल लिए। 5-6 लोग बचे हैं, बाकी सारे के सारे निकल। चले आगे फिर। चलो अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और ऑलमोस्ट आपको जो चीज़ें हमने अभी देखा वही चीज़ें रिपीट होगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसको अब आज समाप्त हो जाएगा ये थोड़ा सा, इसको समाप्त करते हैं। तो एप्लीकेशंस आप इसमें देखेंगे, कलेक्टर टाइप सोलर स्टोरेज टैंक देखेंगे, सिस्टम देखेंगे, एप्लीकेशन एंड कंट्रोल देखेंगे, एंड सिस्टम डिजाइन देखेंगे आप इसमें। सबसे पहले आप देखिए हार्नेसिंग ऑल द काइंड्स ऑफ सोलर एनर्जी, ये आपका सोलर एनर्जी है, ठीक है। इसमें आप देखिए सोलर पावर सिस्टम विथ द फोटोवोल्टिक, तो दो तरह से हैं कि आपको अगर पावर यूज करना है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो फोटोवोल्टिक सिस्टम यूज कीजिए, अगर आपको थर्मल एनर्जी चाहिए तो आप सोलर वाटर हीटर यूज कीजिए, कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। उसके बाद अगर सोलर एयर को हीट करना है, अब ज़्यादातर क्या होता है, एयर हीटिंग भी काम चलता है, जिसमें कि ग्रेन्स वगैरह को ड्राई करने के लिए यूज होता है, या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कपड़े वगैरह को सुखाने के लिए यूज होता है, तो सोलर थर्मल एयर हीटर भी बनता है। तो इस तरह से ये क्या है, थर्मल का ही एक पार्ट है सोलर एयर सिस्टम। कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्राइवेट होम में, पब्लिक बिल्डिंग में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, ये सारे यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये है आपका स्विमिंग पूल, पूल हीटिंग, जो पूल है उसको हीट करने के लिए यूज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे वाटर कलेक्टर लगा हुआ है आपका, और यहाँ से वाटर गर्म हो रहा है, वो इस पूल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और ये पूल में क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली वाटर को सप्लाई किया जा रहा है। ये आपका बिल्डिंग इंटीग्रेशन, बिल्डिंग्स में उसमें इंटीग्रेट करके आप लगा सकते हैं डिजाइन करके, वो दिखा रखा है। ये है 100% सोलर थर्मल सप्लाई, लो एनर्जी स्टैंडर्ड। अब वैसी बात है, थर्मल एनर्जी क्या है, लो ग्रिड एनर्जी होता है, तो लो एनर्जी स्टैंडर्ड होगा, सीजनल स्टोरेज। उसके बाद जीरो CO2 जीरो हीटिंग कॉस्ट, सोलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड सेकेंड स्टोरेज। ये आप सीजनल स्टोरेज दिखा रखा है कि सोलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, पूरे यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में है उसकी हीटिंग करनी है। ये हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, विंटर सीजन में 1 या 2 महीने यूज होता है, जो कोल्ड कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे रूम को वार्म रखने के लिए वो प्रोसेस हीटिंग का काम करते हैं, ताकि वो उसका रूम का जो टेम्परेचर है, जो नेगेटिव में हीट का टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन है, तो उसके लिए यूज करते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग से, ये आपका सोलर थर्मल सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम फॉर द डोमेस्टिक वाटर हीटिंग इन अ सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली होम के लिए ये दिखाया गया कि कैसे ये काम करता है। ये आपका ETC दिखा रखा है, अगर फूड हीटिंग, ये आपको दिख रही है इसमें भी है,
हॉर्स कपलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, टेम्परेचर सेंसर है, उसके बाद अभी प्लग इन है। इस तरह से ये ट्यूब जो है आपका कनेक्टेड है। ये ट्यूब में वाटर सर्कुलेट होता है, ये वाटर हीटअप होता है, फिर उसको ऐसे कूल हीटिंग के लिए यूज कर देते हैं। प्लास्टिक एब्जॉर्बर, ये इसमें प्लास्टिक एब्जॉर्बर टाइप का ही बना हुआ है, ठीक है। कूल हीटिंग के लिए ये भी यूज होता है। ये कूल है, उसके टेम्परेचर को ये पंप के थ्रू इसमें सर्कुलेट कर रहा है, हीटअप हो रहा है, ये कंप्रेसर इसमें आ रहा है, तो ये प्रोसेस यूज होता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये देखिए मैंने बोला था ट्यूब होते हैं, इस तरह के ट्यूब है, और इसके बैक साइड को इसमें ग्लेज करके इसको कवर कर दिया जाता है ब्लैक कलर से। इस तरह के होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ट्रांसमिशन सेलेक्टिव हीट लॉसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, सोलर रेडिएशन, ऑप्टिकल लॉसेज, ये सारी चीज़ें हैं। ये है आपका वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर। ये देखिए, ये क्या है, ये ट्यूब है आपका, इनसाइड में ट्यूब है, ये प्लेट लगे होते हैं जो फिन्स की तरह काम करते हैं, और ये जो ट्यूब होता है वो 100% इवेक्यूएटेड होते हैं। इसको पैक कर दिया जाता है, सील पैक किया जाता है। अब इसमें जो सनलाइट आएगा तो ये जो प्लेट्स हैं, जो इसको फ्लैट प्लेट है, इस फ्लैट प्लेट को ही करेगा। तो फ्लैट प्लेट क्या करेगा, इसी को हीट देगा, तो अल्टीमेटली इस ट्यूब को हीट मिलेगा सेंटर वाले को, तो क्या होगा, ज़्यादा हीटिंग होता है, इसीलिए इसको इसकी एफिशिएंसी 85% हो जाती है। देखिए वैक्यूम टाइप स्टेनलेस स्टील लीड, यहाँ पे ये वैक्यूम है, ये स्टेनलेस स्टील यूज कर रखा है। सुपर ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर इस तरह से डिजाइन होता है आपका। ईटीसी वाली जो भी आपने देखा था उसमें ये रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सन की रेडिएशन हो वो यहाँ से पड़ी आउट हुआ रिफ्लेक्ट होकर इसमें पड़ेगा, तो इसकी ज़्यादा हीटिंग होगी। ये देखिए, ये दिखा रखा है, तो उसको लगाने से ये एडवांटेज है। ये इस तरह से ये दिखता है ईटीसी आपका। डायरेक्ट सर्किट ग्रेविटी फ्लो, ये आपका अभी आपको थर्मोसाइक्लोन वाला बताया था, ये चीज़ें हॉट वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर आएगा, ये फिनोमेना इसमें चलेगा। ये आपका टाइप का सोलर इंस्टॉलेशन थर्मोसाइक्लोन प्रोसेस है। ये है ग्रेविटी फ्लो, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाना होगा, ये भी थर्मोसाइक्लोन का प्रोसेस है। टाइप का सोलर इंस्टॉलेशन फोर्स सर्कुलेशन में हम लोग पंप वगैरह यूज करते हैं और वाटर को फ्लो कराते हैं। ये है आपका टू कंडीशन सिस्टम विद द कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स हैं। ये आप देखिए, ये इंडस्ट्रियल पर्पज से लगा रखा है, ये लार्ज स्केल पे है। ये आता है सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इरेडिएशन पता होना चाहिए। इरेडिएशन के बाद क्या करेंगे, मैप देखेंगे और उसकी इरेडिएशन कैपेसिटी देखेंगे, तो जहाँ पे ये रेडिएशन बनेगा वो हमारे सोलर थर्मल सिस्टम के लिए अच्छा होगा। सेकंड में कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन कितना है वो देखेंगे। फिर सोलर फ्रिक्शन निकालेंगे, उसके बाद सिस्टम एफिशिएंसी, देन कलेक्टर एरिया एंड फाइनली स्टोरेज कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर स्टेप इन द सिस्टम में कलेक्टर एरिया, इस तरह से कलेक्टर एरिया बनाएंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ऐसे कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसके बाद वॉल्यूम फ्लो ये देखेंगे, पाइप डायमीटर, पंप्स एक्सेट्रा, इस तरह से इंस्टॉल करके हीट एक्सचेंजर के थ्रू वाटर को हमारा बॉयलर में उसको स्टीम में जनरेट करेंगे। स्टीम जनरेट हाई प्रेशराइज स्टीम टरबाइन पे जाकर एक्सपेंड होगा और हमें पावर जनरेट करेगा। तो ये है आपका थर्मल हीटर, जो सोलर थर्मल हीटिंग का जो प्रोसेस है वो ये, ठीक है। तो अब तो सोलर थर्मल का केस समाप्त हो चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे, अब आपका है PV-SYST सॉफ्टवेयर। तो PV-SYST सॉफ्टवेयर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में। तो फोटोवोल्टिक सिस्टम पे जैसे आपने मैनुअली कैलकुलेशन किया था, वैसे ही हम PV-SYST पे कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन उसका डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम लोग लोड डालेंगे और अपने आप इसको कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितना आपको फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाना है, कितने आपको पैनल लगेंगे, कितने बैटरी लगेंगे, सारा कैलकुलेशन वो कैसे होता है, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें मैं अब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में कराऊंगा, हार्डली 3 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा।
3 या 4 दिन जाएगा उसको कराने, ठीक है। उसको कराने के बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए फिनिश। कल कोई क्लास नहीं होगा, अब मंडे को क्लास होगा। ओके, यस सर। बलवेंद्र, जी सर। ठीक है। यस सर, यस सर। अब हम लोग मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन करेंगे, ठीक है। 3 दिन में वो तुम्हारा सर पीवी समाप्त हो जाएगा। सर मंडे में रक्षाबंधन है सर, तो होगा क्लास इसी टाइम? अच्छा, मंडे में अच्छा बनेगा ना। नहीं तो ऐसा हाँ करते सर। हैं फिर, मंडे को छोड़ दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है। सर। तो जी सर। ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे कोशिश करेंगे कि ठीक है सर। वेडनेसडे में ही दोनों किस कर लो, नहीं होगा तब थर्सडे रखेंगे। ठीक जैसे है सर, ओके एक सर। तो जो ऑफ ग्रिड है उसमें टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप लोग को भी सीखने में टाइम लगेगा, एक दिन का गेप देना है। या फिर कल कर ले ऑफ जी। ग्रिड, कल कर लेता तो हूँ सर ऑफ। फिर ये हाँ, कल ऑफ ग्रिड कर लेते हैं तो तुम लोग को 2 दिन का प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा लैपटॉप पे, जिसके पास भी हाँ है घर सर। में अपना प्रैक्टिस करेगा। अब फिर उसके बाद है सो ऑन ग्रिड और वो करा दूंगा मंडे छोड़ के ट्यूसडे वेडनेसडे समाप्त हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए सर। हाँ, तो कल हम लोग कर लेंगे पीवी सिस्ट कर लेंगे। तो जितने भी लोग हैं ठीक है, सब ठीक। लोग अपने लैपटॉप अगर घर में है या डेस्कटॉप है तो पीवी सिस्ट का 7.0 वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेना, तो काम करने में सही ठीक है। रहेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है, जब बताऊंगा तो अगर जी। नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे। तो जी। बेसिक चीज़ें जो कैसे सेलेक्ट करते हैं क्या करते हैं वो बता दूंगा, बाकी तुमको सर पटकना है, आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे करना है, बाकी चीज़ें आप खुद है सो करेंगे। जो जो एक मैं डिज़ाइन कर दूंगा बाकी आप डिज़ाइन करिए उस पर, जितना ज़्यादा डिज़ाइन जी सर। करेंगे उतना अच्छा है, सो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। नहीं डिज़ाइन करेंगे ओके तो सर। फिर आप जो भी ओके बताऊंगा सर। वो भी भूल जाएंगे। तो कल हम लोग पीवी सिस्ट का ऑफ ये ऑफ स्टैंड अलोन सिस्टम यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम का डिज़ाइन सीख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। चलिए, तो आज का सर। समाप्त। सारे लोग भाग गए, ये 4-5 लोग बचे। हाँ सर, बस 4 ही लोग बचे हैं, बाकी ये तो 4 चले ही गए लोग सर। हैं, 1 2 3 4, जी सब सर। निकल गए। सबको बस सर्टिफिकेट ही चाहिए, सीखना कुछ नहीं। हाँ सर, अब आप वो प्रेजेंट उस पर दे ही देंगे। चलो क्या करने का है, तो जिसको सीखना है सीखे, नहीं सीखेगा जाएगा इंडस्ट्री में लात मार के भगा देगा, कहेगा हाँ कहाँ वो से तो है अब सर्टिफिकेट सर। लिए हो, सर्टिफिकेट बस ऐसे ही दे दिए हो। दिक्कत ये है ना, अगर सर वीडियो वो भी देख। पीवी सिस्ट का सर लोगो भेज देते तो सर पहचानने में आसानी रहती, कौन सा वो है सर अभी मैं दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन। ऑनलाइन ऑनलाइन गूगल में जाओगे, दिख रहा है ना स्क्रीन, जी। यहाँ दिख रहा है सर। इसमें लिखोगे पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर, पीवी सिस्ट, ये पीवी सिस्ट, ये 70 आ गया ना, ये हाँ जी सर, जी सर। यही हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है सर। ये ट्रायल वर्जन 1 महीने के लिए मिलता है, काफ़ी आपको सीखने के लिए। उसका लाइसेंस वर्जन हाँ लोगे सर, तो वो एक 50,000 रुपया लगता है 1 साल का, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या करना इंडस्ट्री सर? वाले इसको यूज कर रहे हैं, सोलर वाले, तो हाँ इसकी सर। डिमांड ज़्यादा है। तो इसी में इसको है सो पी वी सिक्स 7 है ना, इसको है सो जी। इंस्टॉल करना है, तुमको अपना इसमें ठीक है, देखो, ठीक है सर, कर ले। इसको जी सर, इंस्टॉल कर लेंगे करना आज। है बस। इस तरह की ये लोगो दिखेगा, इस तरह का ये। ठीक है सर, ठीक है। मेरे पुराने वाले लैपटॉप में तुम्हारे पुराने बैच को कराया था ना, तो उसमें इंस्टॉल है, जी। इसमें नहीं इंस्टॉल, इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रायल वर्जन समाप्त हो गया होगा, तो इसमें मुझे करना हाँ वो पड़ेगा। तो तो मैं कर लूँगा, ठीक कल है मैं सर। इसको करा देता हूँ, ठीक है। जी सर। यस सर। चलो, ठीक है सर। ओके, बाय।